ठीक है, चलो तो थोड़ा सा ज्ञान, पहले ज्ञान लेंगे, ज्ञान लेने के बाद चले जाएंगे सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्या टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आते हैं इसमें से। सो वी स्टार्ट विथ रियल नंबर्स and rather an extension of what you have studied in your grade 9. However, when you go to grade 11, मैं थोड़ा 11 की पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ, ये रियल नंबर्स आपके पीछे ना भूत की तरह लग जाएगा। मतलब ग्रेड 11 में जाते हैं कुछ कुछ चीजें आप सीखोगे जो ये इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ये है हमारा नंबर लाइन, ठीक है। इस नंबर लाइन को ग्रेड 11 में जब आप लिखोगे ना, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, इस साइड में आता है प्लस इंफिनिटी, इस साइड में आता है नेगेटिव इंफिनिटी, और ये हो गया हमारा जीरो। दिस इज अ जीरो, right? So on this side we call, this side of the axis is known as the plus r, means all the positive real numbers. This side is called the negative real numbers. Minus r to plus r total is called a set r. R is the set of real numbers. Okay. So if anybody writes in grade 11 and all, they'll write x belongs to, this symbol means belongs to, x belongs to r means x is a number which is a real number. Now what all can be real numbers? Natural numbers, whole numbers, integers, rational as well as irrational. Apart from that, there will be some unreal or imaginary numbers also, which will be there as a part of your syllabus in grade 11. So we are today going to talk about, although the name is real numbers, I don't know, it's only some facets of some numbers that we will be discussing. So this is a brief layout of what we expect as usual. So we'll wait for the program to respond. Now it responded. Okay. Yeah. So let's go to our chapter and see what all we have. Now Euclid's division lemma and all are not there. So if you open your पुराना R.S. Agarwal या कुछ भी, उसमें आपको Euclid's division lemma and all आएगा। नहीं करना है वो सब प्रॉब्लम, वो नहीं है। Just follow your NCERT for what is in your syllabus. The first thing that is in your syllabus is known as the fundamental theorem of arithmetic. Okay, the fundamental theorem. अब पहला बार पढ़ रहे हो ना, ऐसा लगेगा कि बड़ा हाई फंडा कुछ पढ़ रहे हो, बड़ा इजी चीज है theorem of arithmetic. Before understanding fundamental theorem of arithmetic, you should have a fair bit of idea about what is a prime number. A number which is divisible by itself and 1 is called a prime number. Then you should know what is a composite number. A composite number is one which has more than at least 2 or more than 2 factors. At least 2 or more than 2 factors. Okay, so there comes the question that what about 1? Okay, is 1 prime or is 1 composite? So 1 prime is a number which is divisible by itself as well as 1. Now it comes as, what is composite number? A composite number is a number which has at least 2 factors. So if you look at 1 does not have 2 factors. 1 का फैक्टर 1 ही खुद ही है, ठीक है ना, 2 अलग नहीं है। 1 को neither prime nor composite माना गया है, ठीक है। 1 is neither prime nor composite. अच्छा, इसके बाद composite numbers देख लिया आपने, prime numbers देख लिया, तो फिर let us go to this fundamental theorem of arithmetic. Very easy, पहले समझ लेते हैं। Any number, कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, you can express this number as a prime factorization कर सकते हो उसका, prime factorization. What is prime factorization? A factorization which is carried out by prime numbers only. So any number can be expressed, when you do a prime factorization, then this number becomes a factor of primes. बात समझने की कोशिश कीजिए। Take any number, you can conduct a prime factorization. Any number means any composite number. Okay, sorry, I missed that word. Any composite number given to you, you should be able to do a prime factorization. So the theorem reads like this: any composite number can be expressed as a product of primes or factors of primes, and this will be unique. Means the way I do it or Yatharth does it, it will be unique. The only difference can be the manner in which you write and the manner in which I write. Let's say, for example, 6. So 6 is a composite number which can be expressed as the product of its primes. Okay, so 3 into 2, we can write it as 3 into 2. 3 into 2 is always unique, whether I do it or whether anyone does it. He cannot get anything more than 3 and 2. The only difference can be he can write it as 2 into 3, I can write it as 3 into 2. Is this clear?
So the fundamental theorem of arithmetic states that any composite number can be expressed as the product of its primes. And this factorization is unique. The only difference lying in the fact that the way they are arranged or the way they appear. A book में वैसे ही लिखा रहेगा, any composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique. The only difference can be the way that the factors appear. Is this much clear? Okay. After this, since you have understood this, the next two things that you need to know in this part of the chapter are, what about an LCM and what about a HCF? Okay. Now, before going and understanding how to do LCM and how to do HCF, let us just understand what does LCM mean. Let's say take two numbers A and B. थोड़ा समझ लो तो word problems करने में आपको आसान होगा. LCM of A and B. LCM stands for lowest common multiple. अच्छा, जब हम LCM की बात करते हैं, ये M वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये है मल्टीपल. कैसा मल्टीपल? लोएस्ट. और कॉमन भी होना चाहिए, मतलब जिन नंबरों की आप बात कर रहे हो ये नंबर उनका मल्टीपल होगा, मतलब वो नंबर इनसे बड़ा ही होगा या इनमें जो बड़ा नंबर है वो होगा. दोनों नंबर से छोटा कभी हो ही नहीं सकता है. अप्लाई कॉमन सेंस नाउ. इट्स अ मल्टीपल. मल्टीपल इज ऑलवेज बिग. हाउ बिग? आइदर बिगर देन बोथ or the bigger out of the two. Have you understood this? And it should be common for both as well as be the lowest. मैं जरा एक चीज पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, शायद इसमें आपको क्लियर हो जाएगा. मान लो हमारे पास तीन नंबर है. ये है पहला नंबर, दिस इज फर्स्ट नंबर. इसके बाद एक और नंबर है जो कि ये है एक और नंबर. ईच नंबर इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है. और इसके बाद एक और नंबर है जो कि ऐसा एक नंबर है. हमें इनका एलसीएम ढूंढना है, तो कॉमन सेंस लगाओ. एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वो नंबर होगा जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है, मतलब एलसीएम आगे होगा इससे. ऐसा एक नंबर जिसको इसको किसी, मान लो अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे पहुंचना चाहिए, इसको किसी बीटा से मल्टीप्लाई किया तो भी यहां पे पहुंच जाना चाहिए, और इसको किसी गामा से आपने मल्टीप्लाई किया तो भी, और ये आपका एलसीएम है. आइडिया समझ में आ रहा है ना? एलसीएम हमेशा आगे होगा. क्लियर? हैज एनीवन नॉट अंडरस्टूड दिस? क्लियर? एलसीएम विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ द नंबर. इट कैन बी द हाईएस्ट नंबर आल्सो. इफ something multiplied by this number lands you here and multiplied by this number lands you here, then your LCM is out here. But under no circumstance LCM इससे पहले होगा. ये हमेशा याद रखिए. दो या तीन दिए हुए नंबर्स में the LCM is the bigger out of all three, or even further bigger out of them. That you should keep in mind. That will help us in solving word problems. Have you understood the idea? Okay, let's go ahead and talk about HCF. Okay, HCF stands for factor. What type of factor? Highest. And again, the rule is that it should be common. Now let's take two numbers. Okay, let's take two numbers. I have got this as a number and I have got this as a number. Now every number is a factor of yourself. So इस नंबर का अगर मैं येलो की बात देखूं तो येलो की नंबर में यहां पे एक फैक्टर है, और ब्लू के लिए ब्लू का ये भी तो एक ब्लू का फैक्टर है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर, बट यू आर गोइंग टू सर्च अ कॉमन फैक्टर. तो बड़ा बड़ा नंबर तो ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम है. नाउ द कॉमन फैक्टर कैन आइदर लाई हियर और एनीथिंग बिफोर हियर. इज दिस थिंग गेटिंग क्लियर? फैक्टर है ना, फैक्टर्स नंबर्स, सब एक नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है, बाकी सारे फैक्टर उससे अनुज है, छोटे हैं ना. अक्षत बेटा घूंघट उतारिए और क्लास में कैमरा खाना खाने से पहले के बीच में कैमरा बंद करने की क्या खुजली है? मतलब ऐसे करते करते कैमरा बंद कर, कोई आते आते आप ऐसे कर लेते हो क्या? बीच में बात नहीं करते हो क्या? ऐसा कोई आ गया तो कैमरा छोड़ दो ना. कपड़े वपड़े पहन के तो बैठे हो, कैमरा बंद करने की क्या जरूरत होती है? आप ध्यान दो. तो द फैक्टर इज ऑलवेज the numbers itself is a factor. So the biggest factor of a number can be the number itself or anything before that. Now we are talking about highest common factor. So between two numbers, the highest common factor can be the smaller number or anything before that.
इज दिस लॉजिक अंडरस्टूड? ये आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स करने में। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, इस प्रॉब्लम में एलसीएम लगाना होगा, इस प्रॉब्लम में एचसीएफ लगाना होगा, ऐसा नहीं है। पहले समझेंगे प्रॉब्लम मांग क्या रहा है, क्या आगे जाने बोल रहा है या पीछे आने बोल रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट आवर कॉल विल बी वेदर विल टेक एन एचसीएफ और एन एलसीएम। इज दिस मच अंडरस्टूड? तो आइए लेट्स डू आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज ट्राइंग टू सी हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, आइए तो सारे टेक्निक्स देख लेते हैं। से सपोज यू हैव two numbers, say we have a number 16 and we have a number 24 and they have asked us find the LCM, right? So बचपन में हम कैसे सिखाते थे, अगर ये इसको मौत दे देता है, if it can factorize then this one is the LCM। सही बात है। अब 16 से तो 24 को मौत नहीं मिलता है, that means अगर 16 यहाँ है 24 यहाँ है, LCM और आगे है, कॉमन सेंस। तो इसको पहले हम बचपन वाले टेक्निक से करके देखते हैं। बचपन वाले टेक्निक में देखेंगे तो 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 12। उसके बाद कैसे देखेंगे, 2 4 जा 8 2 6 और उसके बाद 2 2 जा 4 2 3 जा 6। आगे और नहीं जाता है। नाम है एलसीएम तो मल्टीप्लाई भी एल के फॉर्मेट में ही होता है। आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4 मतलब 16 और 16 इंटू 3 करने से कितना होता है, 48 है इन दोनों नंबर का एलसीएम। लेकिन अब हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो आइए 16 को लिखते हैं। 16 इज व्हाट बेटा, वी नो इट्स 2 to the power 4 एंड लेट्स राइट 24। 24 कैन बी रिटन एज 2 into 12 and 12 is 6 into 2, 6 is 3 into 2। देखो तो 24 हुआ है कि नहीं, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, अब इसमें हम लोग सोचते हैं वो छड़ा बड़ा वैसा कुछ नहीं करने का। इसको पहले इसके फैक्टर्स में सजाओ, 2 to the power 3 into 3 to the power 1। इसको भी क्या करो, सेम फैक्टर्स में सजाओ, 2 to the power 4 3 to the power 0। लिख सकते हैं। अब एलसीएम लसम है कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन दोनों में ही तो कॉमन है ना, 3 दोनों में ही कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है। अब लोएस्ट बोला है ना, तो लोएस्ट जब आपको बोलता है तो आप एकदम बन जाओ इनर्शिया वाला बच्चा। लोएस्ट बोलते ही आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं तो उल्टा ही करूंगा ना, मैं हाईएस्ट को देखूंगा। 2 का सबसे बड़ा पावर कौन है दोनों में, 4, और 3 का दोनों में बड़ा पावर कितना है, 1, यानी कि ये कितना हो गया, 48। Did you understand the trick? Always write the missing ones, it becomes easy. You may get 2, say alpha, beta, gamma, or only gamma. You write alpha to the power 0, gamma to the power 0, ताकि सबको सेम बराबर फैक्टर्स दिखे। और सेम फैक्टर्स देखने के बाद जैसे ही लोएस्ट बोलेगा आपका दिमाग उल्टा सोचना चाहिए, हाईएस्ट। सो टेक द हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स। और जब बोलेगा एचसीएफ हाईएस्ट, तब आपका दिमाग क्या देखना चाहिए, लोएस्ट। आइए इन दोनों में एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ जब हम निकालते हैं ना, तो एचसीएफ में हम सिर्फ इतना पोर्शन स्ट्रेट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये साइड में और नहीं जाते। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 8। तो इसमें करके देखते हैं। तो अगर हम इनके एचसीएफ को करने की कोशिश करें तो फिर से कॉमन उठा लीजिए 2 और 3। अब हमारा दिमाग क्या है, ये बोलता है हाईएस्ट, और हम हैं उद्यंड बालक, हम तो बोलेंगे हमारे मन में लोएस्ट। तो लोएस्ट वाला फैक्टर निकालिए। तो इन दोनों में लोएस्ट फैक्टर कितना है बेटा, 3, और इन दोनों में लोएस्ट फैक्टर है लड्डू, यानी कि हो गया 8। समझे? ये है एचसीएफ का बाल्यपन ट्रिक नंबर 1, ये है एचसीएफ का नंबर 2। और एक और ट्रिक है जिसको हम कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आओ उसको भी देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से कैसे करते हैं। 24 है ना, 24 को आप डिवाइड कीजिए 12 से, नहीं 16 से। 16 1 जा 16, कितना रह गया, 8 रह गया। 8 से अभी हम क्या करेंगे, इस 16 को डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है एक्चुअली। और कुछ बचा नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो द लास्ट डिवाइजर इज ऑलवेज द एचसीएफ। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर 3 नंबर दिया तो ऐसे कैसे करोगे, 2 नंबर में एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ और तीसरे नंबर को फिर लड़ाओ। समझ में आई?
GCD मेथड, समटाइम्स यू कैन चेक आल्सो। हैव यू अंडरस्टूड GCD? पहले जो भी नंबर दिया है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर अगर नहीं आया तो छुटका वाला नंबर HCF। HCF इज ऑलवेज, डायग्राम था ना हमारा, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो यही HCF हो गया। और अगर HCF उसमें नहीं आ रहा है, आगे बढ़िए, ये 0 होगा ही होगा, कहीं ना कहीं जाके होगा ही होगा। और जब ये 0 हो जाता है तो लास्ट वाला जो डिवाइजर है वो HCF है। एनीवन हैज एनी इश्यूज अंडरस्टैंडिंग HCF एंड LCM? ये सब आ जाता है लेकिन, ठीक है। और इसके बाद ऐसा भी रहता है कि अगर आप हसफ और लसम को मल्टीप्लाई करोगे तो आप बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। इसके ऊपर बहुत सारे 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं। द LCM and the HCF's product is equal to product of the two numbers. LCM and the, what happened here? Arun, you lost some eyebrow, ऐसा क्या हो गया? कुछ इंजरी हुआ है क्या लेफ्ट वाले में? Okay, the LCM into HCF is the product of the two numbers. एक थिंग्स टू रिमेंबर में चैप्टर में 3 नंबरों का भी दिया हुआ है, वैसे उससे प्रॉब्लम नहीं आता है। इफ यू सी इन NCERT book there will be 3 numbers also. Last LCM into HCF, this will be given as HCF of this, HCF of this into HCF. The LCM of 3 numbers is equal to HCF of the 3 numbers into HCF of 2 taken 2 at a time. उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये समझ में आ गया? गुड। सो इसमें हम क्या करेंगे अभी, इसके बेसिस पे। अच्छा, एक और चीज हमने देखा, चलिए वो प्रॉब्लम में देख लेंगे। अच्छा, you know one thing, right? For any number to be divisible by, to end in 0, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना ही पड़ेगा। सोचो, जो नंबर 0 में एंड करता है, जैसे 10, 20, उसको आप जब प्राइम फैक्टराइज करोगे 5 आना ही पड़ेगा। हाँ, 5 आना पड़ेगा, 5 चाहिए हमें। वो नंबर 2 के साथ घुस के आएगा, देखेंगे समझ में। बहुत ही गोली मारा है बच्चा। चले आगे, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो वी कैन गो फॉर आवर प्रॉब्लम्स। ये पहला प्रॉब्लम। ऐसे टाइप प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। शो दैट दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। याद नहीं करना है, कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या 2 और मोर फैक्टर्स। प्राइम या 2 और मोर फैक्टर्स। ऐसे प्रॉब्लम में आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पे एक चिरागदीप इंटरनेशनल कांड होगा, एक चीज डबल रिपीट करेगा। इसमें भी देखिए आप, एक चीज डबल रिपीट करेगा। नंबर छापने वाले प्रॉब्लम है, इसमें सीधा जो रिपीट कर रहा है उसको कॉमन ले लो, तो क्या क्या बचा बेटा? 11 है, 5 है, और कितना है? 1 है। ठीक है, अंदर को सुलटा दो। 13 itself is a prime number। कितना हो गया ये? 56। At this stage itself you can write, since this number is a product of 2 factors, minimum 2 factors, it proves it is composite। बुक में लिखा गया क्लियरली, क्लियरली, खूब क्लियरली लिखता है, रियली, क्लियरली। ये देखो, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ना, 2 फैक्टर्स। इसका मतलब ये नंबर जो भी है, लेट्स से दिस नंबर इज सम नंबर अल्फा, आपने दिखा दिया है कि अल्फा इज इक्वल टू 13 into 56। जब भी कोई नंबर, 2 नंबरों का प्रोडक्ट, 2 फैक्टर्स तो हो गए ना इसके, ये कॉम्पोजिट हुआ। और अगर आपको और आगे प्रूफ करना है तो आप 13 लिखिए, 56 क्या है बेटा? 7 into 8, तो 7 हो गया, और फिर 2 into 2 into 2। अब सारे प्राइम नंबर्स आ गए। ये भी कहता है कि ये कॉम्पोजिट नंबर। टेक्निक समझ में आया? तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली? यू विल राइट, आप 5 को कॉमन लेंगे, 6 into 4 into 3 into 2, और यहाँ पे क्या है? into 1, और यहाँ पे +1। अब ये नंबर कितना हो गया? 3 2 6, 6 6 36, 36 into 4, 4 3 12, हाँ 1 36 +1 है ना, तो ये कितना हो गया? 5 into 137। सिंस द गिवन नंबर, जो आपका गिवन नंबर है, इज अ फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 2 numbers, therefore it is a composite number। और चलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोलो तो सब कोई देगा नहीं आपको, तो आपको कौन सा ब्रैकेट में? हाँ, ये गलत किया इसने।
ये कितना हो गया 3 2 6 6 6 36 36 इंटू 4 36 इंटू 4 हिसाब कर 36 30 को 4 से करने से कितना होता है 120 और 6 को 4 से करने से 1 प्लस 1 तो ये हो गया 5 इंटू 145 बस इतना मेरे रखना चाहिए। ये टाइप प्रॉब्लम समझ में आ गए? बहुत अच्छा बच्चा, बहुत शार्प है आप लोग। आइए इस टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं। शो दैट एनी नंबर, अच्छा इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ कुछ लेमा टाइप प्रॉब्लम्स है वो नहीं देखना है। यही आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये उठ के आ जाता है कभी कभी। शो दैट 4 to the power n for n belonging to n means n is a natural number। पहले से n क्या क्या वैल्यू ले सकता है, शून्य नहीं ले सकता है, 1 2 3 4 and all। So it says that 4 to the power n never ever ends with 0, ठीक है ना। अब इसको कैसे प्रूव करना है? 0 से एंड करेगा तो इसमें 5 नाम का एक फैक्टर अपीयर करना ही चाहिए। तो 4 to the power n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 square to the power n, है ना। इसका मतलब n कुछ भी हो, ये अंदर हमें 5 नहीं दिखा, तो ये नंबर तो हम लिखेंगे that 4 to the power n does not have 5 as one of its factors, so it is ruled out that it will ever end with 0, because for to end, ये आपकी इंग्लिश लिखने की कैपेसिटी, छोटा लिखेगा, for a number to end in 0 the prime factorization of the number must have 5 as one of the factor। अब इसको हाँ, इसको तो हाँ, अरे एक ही बात करते रहते हो, 2 तो है यहाँ पे, for the number to end is, अगर यहाँ पे 5 रहता और 2 नहीं रहता तब आप 2 लिखते। for the number to end in 0 5 must be one of the factor in its prime factorization, 5 is not appearing, क्लियर है। तो ये नंबर 0 में एंड नहीं करेगा। जैसे ये वाला नंबर है, ये क्या है 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n, क्या ये ऐसा नहीं है 2 to the power n into 3 to the power n, क्या यहाँ आपको 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये नंबर कभी भी 0 एंडिंग नहीं हो सकता है। ये सब आ जाता है कभी 2 मार्क्स के, ठीक है। चले अगले टाइप, आइए ये टाइप, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो ये आप लोग करो, 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, आइए। हो गया, सेवन और 156, तो इसको क्या लिखेंगे 13 to the power 0 और इसमें एक 7 to the power 0, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 into 3 into 7 into 13, और एलसीएम बोले तो हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर हम लेंगे 2, 3 का हाईएस्ट पावर हम लेंगे 2, 7 का हाईएस्ट पावर हम लेंगे 1, 13 का हाईएस्ट पावर हम लेंगे 1, ये एलसीएम। कौन सा एलसीएम कर रहे हैं ना बेटा, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, उल्टा सोचना है ना आपको, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा सारे फैक्टर्स लिखो, नहीं हो रहा है तो इनको 0 से लिखो। सर wanted to 3 square 126 के पैकेज को 2 दिया। हाँ क्या हुआ बेटा? सर 3 स्क्वायर होगा ना, 3 स्क्वायर अच्छे होगा, लेकिन का क्यों 126 का 3 स्क्वायर ही तो लिखा। हां अच्छा हो, हाँ जो भी है, और एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ करेंगे तो कैसा आएगा, फिर से हम लेंगे 2 3 7 और 13, इस बार छोटे छोटे वाले लेने हैं। 2 पे आएगा 1, 3 पे आएगा 1, 7 पे आएगा 0, 13 पे आएगा 0, 6 इज दी एचसीएफ।
और एलसीएम कितना आया आपको दोनों को, एलसीएम बताओ कितना आया, एलसीएम की वैल्यू 3276। इसको डबल करेंगे तो 3000 3000 हो गया 6000, 200 200 हो गया आपका 400, 70 70, 140, 540, 6 6 12, 552, 6552 होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 6552, कुछ तो गलत हुआ है, इसको डबल और 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सॉरी माय मिस्टेक यार, सॉरी। सो 6 6 36, 3 6 7 42 plus 3 45, 4 carry over, 6 2 12 plus 4 16, 1 6 3 18 and 1 19। ये जो नंबर आया ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आना चाहिए। ठीक है, चलें आगे, समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ करना। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, HCF of two numbers is 23. This is a very common type of problem, and LCM is 1449. If one of the number is 161, find the other. So how do you do it? You say that 161 into the unknown number x should be equal to LCM of 161 and x multiplied by HCF of 161 and x. So this side is given to you. Sum is how much? This is 23, this is 1449, and this is 161. That should be the value of x. कर लोगे ये भी, ठीक है, हो जाएगा। चलेंगे आगे, चलो आगे चलते हैं। Find the largest number which divides blah blah and blah blah. Largest number मतलब greatest common divisor। HCF पूछ रहा है आपको, देखो घुमा के पूछ रहा है। लार्जेस्ट नंबर मतलब which divides this and this, leaving remainder 5 in either case। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, पहले नंबर को आप क्या करोगे, 5 से माइनस कर लोगे तो आपका नंबर हुआ 240, और 1037 से 5 निकालोगे तो कितना हो गया 1032। इन दोनों नंबर्स का GCF निकालना है आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides blah blah and blah blah and leaves remainder 5। तो पहले ही 5 निकाल लो और फिर इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। अब ये GCD मेथड से करोगे ना, आपको ज्यादा आसान होगा। देखो 1032, इसको कितना से 240, 250 को 4 बार करने से 1000 होता है, तो ये 4 बार तो जाएगा। 4 से करने से कितना होता है 0, 4 4 16 and 1 4 2 8 and 1 9। ठीक है, what is the difference to this one? 72 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 240 को। 7 3s are 21 होता है। सो अगर हम 3 से मारे, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 216, 4 और यहाँ पे कितना आया 1 2 24 से अब हम 72 को मारेंगे, 3 से मारने से 72 होता है, यानी कि वो नंबर है 24 से इसको डिवाइड करोगे तो भी 5 रिमाइंडर रहेगा, 24 से इसको डिवाइड करोगे तो भी 5 रहेगा। ट्रिक समझ में आया? पहले 5 निकाल लो, निकाल के फिर डिवाइड करो। यहां अगर आप 2 टू द पावर वाला गेम खेलोगे ना, तो भैया नदिया इज डूबिंग लाइक एनीथिंग। यहाँ GCD गेम इज इजियर। ये टेक्निक समझ में आया? तो शायद स्कूल में किया नहीं होगा। हाँ, इसको 2 टू द पावर कर, या फिर तुम वो ग्रेड 6 वाला कर लो, दोनों नंबर को लिख के जो टेबुलर कॉलम करते हो, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज इन दैट ऑल्सो यू आर गोइंग फॉर फैक्टराइजेशन। So it makes better if you go by GCD method. That this question is actually again Euclid's division lemma. तो कितना ही applicable है आपके लिए मुझे नहीं पता। ठीक है, आइए नेक्स्ट। 2 tanks, अभी सवाल को सुनो, मजेदार है। 2 tanks contain, इस ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा लाइन से ड्रॉ करो। एक टैंक में 504 लीटर दूध है, दूसरे टैंक में 735 लीटर दूध है। ठीक है, देखो आप खुद बताओगे इसमें क्या करना है। इफ यू नो, वेरी गुड। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। ऐसा एक मग्गा ढूंढो विच कैन मेजर द मिल्क एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा एक मग्गा ढूंढो जिससे हम 5 बार में ये दूध मेजर कर ले और 7 बार में ये कर ले, x y टाइम्स में।
अब मग्गा तो भाई साहब टंकी से छोटा ही होगा ना, तो ये प्रॉब्लम एचसीएफ का है। आ रहा है अभी आइडिया कैसे इस प्रॉब्लम को डील करना? हमें तो मग्गा ढूंढना है। दैट मग विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन दिस टू। या तो यही होगा, ये एक बार में अपने को मेजर कर लेगा, इसको मान लो 2 बार में, पर 2 बार में तो होगा नहीं। तो इस बार हमारा नंबर वो मग्गा कहीं कहीं होगा, यहाँ पे मग्गा, तो मग्गा निकाल सकते हैं। अब इसका एचसीएफ भी देखो, तुम वो टुनटुनी वाला मेथड करोगे तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर से जीसीडी लगा सकते हो। 735 और कितना है 504, एक बार में करेंगे तो कितना हो गया 504, कितना बचा 1 3, कितना आएगा और कितना आएगा 2 भी आएगा। हाँ, तो इसमें आएगा 504। अब 200 200 400 30 30, तो 2 बार में कर देंगे इसको। तो 2 बार में करने से कितना हुआ बेटा 462, कितना आया 2 6 और 4 10 42। और कुछ जाता है नहीं जाता है। अब आगे कितना है 231, 5 टाइम्स मारेंगे तो कितना हो गया 5 2 10 का 0 1 कैरी हुआ 5 4 20 एंड 1 21, कितना बचा 1 3 और 2 2, और लास्ट में आया कितना 42। 2 बार में करेंगे तो 42। 21 लीटर वाला मग्गा लेना पड़ेगा। ये मग्गा होना चाहिए 21 लीटर वाला। इससे हम इसको भी मार सकते हैं, इसको, इतना इजी है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612, पहले सोचते हैं एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612, तो एक कंटिजेंट है 612 लोगों का, दूसरा एंड इज टू मार्च बिहाइंड अनदर कंटिजेंट ऑफ 48 मेंबर्स। अब आप परेड मत सोचो, सोचो झुंड में कितने लोग हैं 612, दूसरा वाला स्कूल के कितने कंटिजेंट आए 48 स्टूडेंट्स, जो हैव गॉट 2 डिफरेंट कंटिजेंट। दूसरा वाला कितना है 48 है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, से 48 ऐसा है। इन्हें ये सब लोग ऐसे हैं, देखो कुछ भी ऐसे सारे लोग हैं, इन्हें हमें कॉलम में सजाना है, कॉलम, ठीक है। What is the maximum number of columns in which they can march, and the 2 groups must march in equal number of columns. Means first our school A will march, behind them school 2. Don't you think the columns will always be smaller than the numbers? ये HCF का प्रॉब्लम है। कॉलम हम कभी नंबर से बड़ा तो नहीं कर सकते ना, और अगर हमने 612 कॉलम बना दिए, ये भाई साहब कहां बैठेगा, ये तो बैठेगा ही नहीं। तो आपको ऐसे कॉलम्स बनाने दो। सॉल्विंग द अगेन यू कैन सॉल्व दिस बाय आवर जीसीडी मेथड, दैट इज इजियर। चले एक और, ये बड़ा बढ़िया है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ी बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। ये बड़ा बढ़िया है, ये एक बड़ा कॉमन है। रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर फोर्स फील्ड। तुम क्या करोगे सर्कल बनाओगे, सर्कल नहीं बनाना है, ये प्रॉब्लम पूरा लाइन का प्रॉब्लम है। रवि टेक्स 16 मिनट्स, 16 मिनट में रवि चला जाता है, और उसके बाद वाइल शिखा कंप्लीट्स द राउंड इन 20 मिनट्स, शिखा स्लो है, शिखा 20 मिनट्स में कंप्लीट करता है। इफ बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहीं पे स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वही गोल घूम रहा है, हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन। अच्छा, ये लोग कभी भी इतने टाइम में तो मीट नहीं कर सकते भाई साहब, अगला मीटिंग तो इसके बाद ही होगा ना, तो आप आगे जा रहे हो, एलसी कर लोगे, बहुत ही बढ़िया। यहां खत्म हो गई ये सब कहानी। अब आ गया तुम्हारा एक और कहानी, रूट वाला। ये वाला समझ गए, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। एनी डाउट ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? ओके, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेयर वी डू इरेशनल प्रॉब्लम्स। सो couple of things you should always remember from grade 9, that some things याद रखना, irrational multiplied by an irrational gives you rational, and an irrational multiplied by an irrational gives you irrational। तो मल्टीप्लीकेशन में भैया दोनों ही चीज पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लीकेशन में दोनों पॉसिबल है तो डिवीजन में भी दोनों पॉसिबल है। इरा इरा रा, इरा इरा इरा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एडिशन करोगे तो आपको इरेशनली आएगा, ये तो आगे और जाएगा नहीं। या फिर अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे तो भी ये इरेशनली है। तो कहने का मतलब है इरेशनल इनटू इरेशनल, ये भाई साहब आपको रैट भी दे सकता है
इरैट भी दे सकता है, चेक कर लीजिएगा। लेकिन इरेशनल प्लस इरेशनल ये सदैव आपको √2 प्लस माइनस √2 का दिया, ये भी आपको रैट दे सकता है, इरैट दे सकता है। लेकिन जहां इरैट एंड रैट का आया वो आपको हमेशा इरैट देगा। जस्ट इज दिस क्लियर बाय लॉजिक टू यू? एन इरेशनल एडेड विथ एन इरेशनल may give you a rational also. √5 plus minus √5 gives you 0. 0 is a rational number. A rational number का definition याद है तो? Number in the format of p by q where p and q are integers and q not equal to 0. Anyone who has doubt in this? ये तो एक बार अच्छा से लिख लो. Irrational into irrational. Irrational plus irrational. अच्छा माइनस और डिवाइड नहीं लिखा क्योंकि माइनस और डिवाइड इज जस्ट द सेम थिंग. Irrational प्लस रैशनल. इसमें भैया दो आंसर आ सकता है, इसमें भी दो, इसमें लेकिन सिर्फ एक ही आएगा. और फिर आप पूछोगे सर आपने रैट प्लस रैट के लिए मारेंगे ना एक कान के नीचे. रैट प्लस रैट हमेशा रैट होता है और रैट इंटू रैट भी हमेशा रैट होता है. रैट इंटू रैट इज रैट. इज दिस अंडरस्टूड? क्लियर? गलती मत कर देना इसमें. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स. चलें आगे. चलिए आगे चलते हैं और गेम के आखिरी पड़ाव में आइए. द आखिरी पड़ाव ऑफ द गेम इज, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आपको आता रहता है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. अब इसको बच्चे तोते की तरह रटते हैं, रटने की कोई बात ही नहीं है. इसको जानने से पहले एक चीज जान के रखिए. अगर हमारे पास कोई नंबर है से अल्फा, और अल्फा क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है. इफ दिस डिवीजन इज पॉसिबल देन अल्फा ए को भी डिवाइड करेगा. देख लो, सोच लो. 64 को 2 डिवाइड करता है, 8 को भी 2 डिवाइड करता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ 64 व्हिच इज नथिंग बट व्हाट 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अगर ये पॉसिबल है तो 8 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. इफ अ नंबर डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर then that number should divide the root of that number also, means the positive root or negative root, both. Clear है? तो एक थ्योरम है आपके बुक में, if p divides a square, p divides a. इसका जेनेरिक में हम क्या बोलते हैं, if p divides a square then p divides a also. भाई साहब ये तरह याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा रखना नहीं रखना की तो बात है. मोटापा मोटा बनाइए, पतला बनाइए, जिस तरह से चाहिए वैसा कीजिए, ठीक है? यार रख दिया. चलो, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. तो इसको हम प्रूव करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की तरह. प्रूव दैट अक्षत इज नेवर पंक्चुअल. तो हम क्या प्रूव करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो हम प्रूव करेंगे लेट अस अज्यूम अक्षत इज ऑलवेज पंक्चुअल. फिर हम कुछ ऐसा एक सत्य निकालेंगे जिसमें यह प्रूव हो जाएगा कि वो अक्षत का प्रॉपर्टी नहीं है. सो आवर assumption was wrong. अक्षत is never punctual. Disclaimer, it was example was for illustration purpose only. Any familiarity found with any living individual is completely coincidental. ठीक है ना? No animals were harmed during this example. ठीक है? समझ में आया? यार इस सब क्या हो गया, मन दुखी करके बैठा है. अच्छा, बारिश हो रहा है तो क्या विरह का पोएम लिख रहे हो क्या? वर्षा ऋतु के ऊपर निबंध लिखिए. वर्षा ऋतु में हम घरों में ही बंद रहते हैं, हम बाहरी क्रीड़ा नहीं कर सकते. दुख भरी बातें देखकर खिड़कियों से और उनकी सलाखत से अपना मुंह ऐसे ई करके बत्ती सी दिखाते हैं, है ना? वास्का मैडम सुबह हो गई आज, बड़ी अच्छी बात है. चलो, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, पहले लेट अस अज्यूम. आप लिखो मत, आप पहले प्रोसीजर समझो. √2 इज रैशनल. पहले हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये √2 रैशनल है. अच्छा, √2 अगर रैशनल है तो √2 को हम कुछ भी नंबर s/r, r/s कुछ भी लिख लो. और यहां हम क्या बोलते हैं,
S and R should belong to the integer family and R should not be equal to 0. अब बोलोगे सर ऐसा तो बुक में कुछ लिखा नहीं था, तुम लिखो ना, that's why it's rational ना. लेकिन तुम्हें कैसे पता कि S by R, जैसे ICSE में करोगे ना, वो अगले स्टेप से करता है. S by R और भी तो छोटा हो सकता है. So we say कि S by R में there are some common factors. अब ये कोप्राइम नहीं है, अभी भी हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं, हम और भी आगे अज्यूम करके कहते हैं कि हम लिखते हैं रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म्स, रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म्स. तुम्हें अगर वो सब को फैक्टर्स प्राइम वो लैंग्वेज नहीं आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, से √2 इज इक्वल टू a by b, मतलब S by R को काटते काटते a by b such that a and b are co-prime. अब इसके आगे और नहीं जाएगा. Co-prime and have only one as common chapter. भाई साहब समझ में आया? अब ये को-प्राइम हो गए और इनमें एक ही कॉमन फैक्टर है 1, मतलब a b को डिवाइड नहीं करेगा और b भी a को डिवाइड नहीं करेगा, इससे आगे नहीं जाता है. ठीक है, ये पोर्शन आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको स्क्वायर कर दो, दोनों साइड को स्क्वायर करते ही हो गया 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर. ठीक है, और ये प्रॉब्लम कैसा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब हम क्या लिखेंगे, अब हम वो वाला फॉर्मूला लाना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला, यहां से क्या दिख रहा है बोलो, a स्क्वायर मस्ट डिवाइड b स्क्वायर, और इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. सो यहां पे क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स 2 must divide a. So let's say a by 2 को हमने क्या ले लिया, c ले लिया, तो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2c. अब 2c को यहां पे एंटर कर दो, तो 2b स्क्वायर कितना हो गया, 2c होल स्क्वायर कितना हो गया 4c स्क्वायर, मतलब अब b स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2c स्क्वायर. तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. थोड़ा फास्ट करने से तुम लोग गाड़ी फंसा जाए. 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इतना तक समझ में आया ना. तो यहां से हम कहते हैं दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स b स्क्वायर एंड 2, दैट मींस 2 मस्ट डिवाइड दिस. सो 2 डिवाइड्स a, 2 अगर a को डिवाइड करता है तो कोई नंबर c बनता है, तो हमने लिखा a इज इक्वल टू 2c. ठीक है ना. सो b स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, जो कि 4c स्क्वायर, 2 ने 2 को काटा तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, दैट मींस 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर. अब स्टोरी फिर से वही आ जाता है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दैट मींस 2 डिवाइड्स b. अब आपने एक बार बोला 2 डिवाइड्स b, एक बार बोला 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब क्या हो गया, a and b have a कॉमन फैक्टर 2 तो कॉमन फैक्टर निकल गया ना, लेकिन आपने यहां पे बोल दिया था कि a and b आर को-प्राइम, इसके बीच में कोई फैक्टर है ही नहीं. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग यू. और ऐसा क्यों आया, बिकॉज योर अजम्पशन इज रॉन्ग. तो यहां से आप लिखते हैं इट मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, a and b have a common factor 2 which is not possible because a and b were taken as co-prime. So our assumption is wrong. It means the given number is irrational. दोबारा देखते हैं, जो नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करने बोला है, जनरली ये √2 बोल सकता है, √3 बोल सकता है, √5 बोल सकता है, सब में हिसाब मैच करेगा. यू ऑलवेज टेक दैट नंबर इज रैशनल. और इसको दिखा दो ऐसे, आईसीएसई के बुक्स में देखोगे तो वो सीधा लिखेगा √2 इक्वल टू a by b where a and b are co-prime. इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट खाना लाने के लिए प्लेट लाना है ना, ये प्लेट लाया, ये आपके सामने थोड़ा टिश्यू से पोंछ के फिर प्लेट दे रहा है. प्लेट मांगा तो साफ ही प्लेट लाओगे, यहां से भी कर सकते हो प्रॉब्लम को. अगर आप ये वर्ड लिख दो, तो पहले हमने लिखा ये, फिर इसको लोएस्ट टर्म में ले गया ये, फिर दोनों को स्क्वायर किया, फिर पी स्क्वायर वाला फंडा यूज किया. जिस साइड में नंबर को अकेला करो, 2 वाला इस साइड में ले आओ. 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 शुड डिवाइड a, दैट मींस a by 2 इज इक्वल टू c. सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड.
If you input that into this equation, you can also get 2 divides b. That means a and b have a common factor 2. समझ में आया? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डेविएशंस कैसे कैसे आते हैं. इसी तरह आप √3 को प्रूव कर सकते हो. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं. जैसे लास्ट ईयर एक एग्जाम, लास्ट ईयर मींस दिस ईयर इटसेल्फ पर एग्जाम आ गया. तो आपको किसी ने बोला प्रूव दैट √3 - 5 इज इरेशनल. ये है ना, ये रैट प्लस इरेशनल होना, ये तो इरेशनल ही है. ये प्रॉब्लम आया है 2 मार्क्स का. इसमें आपको √3 को इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. इसमें आप सीधा बोलोगे लेट दिस नंबर बी इक्वल टू a by b, वेयर a by b इज अ रैशनल नंबर, मींस a and b. तो आप √3 को क्या लिख सकते हो? 5 plus a by b. Rational plus rational is always rational, and this side is irrational. Therefore, this number can never be a rational number. दोबारा बोलते हैं, prove that this is irrational. So we will say this is rational. If this is rational, it should be expressed as a form a by b. Have you understood? सुनते जाइए. If this is rational, it must be expressed as a form a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. इतना तो लिख ही पाएंगे. Then we show that √3 is equal to 5 plus a by b. 5 plus a by b should be a rational number because 5 is a rational number, a by b is a rational number. लिख के दूं क्या? नहीं, लिख के देना, लिख के दे सकते हैं. So we say that √3 is equal to 5 plus ab, which means √3 is rational, which is not possible. In such a problem, you are taking it into consideration that √3 is irrational because the marks were only 2. अगर आपको कोई ऐसे ही बोलता है ना, prove that √3 is irrational, then you have no other route but to go by that लंबा राम कहानी वाला रूट. ठीक है. ऐसे आपको एक और नंबर दे सकता है, prove that 2√3 is rational. तो हम फिर बोलेंगे let us say this is rational and can be expressed as a by b. So √2 becomes what? A by b, a by 2b. A by 2b is also rational. If a by b is rational, a by 2b is also rational. क्या होंगे? ठीक ना? But √2 is not rational. Therefore, this statement does not hold true. And this statement is a result of our wrong assumption that this number is rational. Hence, prove that it is irrational. और अगर आप इसको वो मेथड से करना चाहो ना, तो भी आंसर आएगा. हाँ, आंसर तो आएगा, क्योंकि वो मेथड में करोगे तो r by s करने के बाद ये स्टेप आएगा. इसको आप कर लो, स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. 8 इज इक्वल टू a² by b². इसका मतलब कितना हो गया? 8b² इज इक्वल टू a². इससे आप एस्टेब्लिश करोगे 8 डिवाइड्स a, ये एस्टेब्लिश हो जाएगा. 8 डिवाइड्स a². और हम क्या लिखेंगे? 8 by a इज इक्वल टू c, ये लिख लेंगे. तो इसका मतलब हमारा हाँ 8 इज इक्वल टू सॉरी उल्टा लिख दिया. हाँ सॉरी, थैंक यू अद्वैत. a by 8 इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू 8c. अब a इज इक्वल टू 8c इसमें डालो. 8 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 और c का स्क्वायर हो गया c², ये b². ठीक है ना? तो एक 8 ने एक और 8 को काट दिया. क्लियर? तो यहां से आपको क्या आ गया? 8c² इज इक्वल टू b². यहां से आप फिर बोलोगे 8 डिवाइड्स b. दैट मीन्स a एंड b हैव ए कॉमन. मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर खलबली मचा हुआ था कि इसको ऐसे कैसे प्रूव होता है. इससे भी प्रूव हो सकता है. 8 डिवाइड्स b, 8 divides a. So a and b have got a common factor 8, which is against our assumption that a and b is co-prime. अदालत अगले चैप्टर तक के लिए मुसल्ली की जाती है. The court is adjourned till coordinate geometry. Now next chapter.